opportunity to welcome you all to the panel discussion. Today, I request the panelists to please take their positions on the dais. I invite the panelists to please take their seats on the dais. Professor V.K. Singh sir, Dr. Rajni Ranjan Singh ji, Dr. Subhash Mishra, Dr. Shubhra Katara, and Squadron Leader Tulika Rani. I request you all to please give a round of applause for our panelists. To begin with, I would first like to apologize to all my panelists for the delay in the program. Due to heavy rains, we had to slightly delay our program, and I know all of you have other commitments also, so we will be quickly winding this up. So we are starting this discussion now. Now, as we know, this panel discussion is on this topic, that is implementation and impact of National Education Policy 2020 in higher education. Now, the real challenge we know is in its implementation. Now, NEP we know is a crucial document. So today we will discuss some more aspects of NEP with our panelists. So first I begin, and I will be the moderator for this panel discussion. First I begin with introducing the experts with all of you. I start with Professor Vijay Krishna Singh sir. Sir has been Vice Chancellor of Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University, Gorakhpur. And sir is also was also ex-pro Vice Chancellor AKTU Lucknow, and sir is a retired Professor of Mathematics from the Indian Institute of Technology IIT Lucknow. Sir has also held several administrative positions. Sir was awarded University Gold Medal for scoring highest marks in mathematics at graduation from Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University. Sir had over 37 years of teaching experience, and sir has supervised 4 PhD theses. Next, I introduce you with our next speaker, Dr. Shubhra Katara. Ma'am has come all the way from Bareilly, so a big round of applause from ma'am. Madam is the head of the department of Statistics in Bareilly College, Bareilly. She has over 37 held various administrative posts in Bareilly. So a big round of applause and we welcome ma'am. We have with us Dr. Rajni Ranjan Singh, Professor of Education. He is Head Department of Education and Dean Faculty of Special Education. Former Dean Students Welfare, former Director IQAC, Dr. Shakuntala Mishra, National Rehabilitation University. Sir is also a member of Northern Regional Committee, National Council for Teacher Education, New Delhi, associated with Rehabilitation Council of India. We welcome you, sir. Next we have with us Squadron Leader Tulika Rani. Ma'am is G20 Brand Ambassador of Uttar Pradesh for Higher Education. She is the ex-Indian Air Force mountaineer Everest climber, a motivational speaker who has given her speeches for TEDx, Toastmaster. She is a brand ambassador of SWEEP Sweep program of Election Commission of India with Uttar Pradesh government, and is also the ambassador of India Women Empowerment and is a World Leader Summit. Ma'am has won various outstanding achievements. To name a few, she has won Rani Lakshmibai Bravery Award from the Uttar Pradesh government, and is a she was, Madam saying to emphasize on that because it's actually one of her biggest achievements. She is the first woman from the state of Uttar Pradesh to climb Mount Everest in 2012 and the first Indian woman to climb Asia's highest volcano in Iran. So we welcome you, ma'am. Next we have Dr. Subhash Mishra. Sir has more than 18 years of teaching experience and he is working in the Department of Education
Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University. Prior to this, he got opportunities in two prestigious organizations, NCERT and Sikkim Central University, Gangtok, but he preferred to work as an assistant professor in the Department of Education. So we welcome you, sir. So we are now starting with this discussion, and as we know, the vision of the policy states that an education system rooted in India, ethos that contributes directly to transforming India, that is Bharat, sustainably into an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all and thereby making India a global knowledge superpower. So, the first aspect that we will be discussing today, and I will be raising my question to Professor V.K. Singh sir, is that we know among various principles and policies of NEP, the fundamental principle of the policy states that the aspect of multidisciplinarity and a holistic education across sciences, social sciences, arts, humanities and sports for a multidisciplinary world in order to ensure unity and integrity of all knowledge. The focus of NEP is for holistic and all-round development of the students. So sir, now the floor is yours and I would like you to throw some light on this. So you can take the caller mic as well. Shalini, please give the mic, hand mic to sir. So you can sit and speak. I request you all to please give a round of applause for this. Let me first congratulate the organizers of this seminar. They have taken very rapidly the step to educate the delegates we have assembled here from various parts of the country. And as you know that NEP 2020 is basically a very grassroots level education system that is being introduced in India, which will change the entire education system. But before that, I congratulate the University faculty members that they have been awarded A++grade, and they really deserve it. So, for each faculty member, each one, including under the dynamic leadership of Professor Alok Rai, the Honorable Vice Chancellor, who has maneuvered such a great achievement, and which has been a great leadership it has been producing in the entire country. It is one of the rarest feats that the Lucknow University has really achieved. So, congratulations to all of you for such a magnificent achievement. Coming back to the NEP 2020, as you know that since very long after independence, India got independence, the education was quite low in 1947. The literacy rate is very, very low. It could hardly come to higher education. In those days, the thrust of education was for the law, because the law graduates were more in demand. There was no industry, no infrastructure, nothing is there, particularly a remote area, rural area. There was no education at all in the higher education. As it passes by, some 20-30 years, even a country after slavery of 400 years, when it passes by 20-30 years, still no significant growth was there in the higher education. But after 80s, the government of India as well as the other state governments of the various states started thinking about the higher education, and particularly the traditional type of education where focus was only on the classroom teachings and somewhat research. So higher education is being expanded in the remote area also, rural area also, as very rightly said by in the previous discussion that about 70% of the higher education institutions are in the remote area, rural area, where still they lack the infrastructure, the sincerity of the teachers, the depth of the teachers. Particularly, most of the institutions doesn't have the qualified teachers, and that is the main problem for a good classroom teaching. So now, since the technology has taken over in 90s, when technology has taken out technology, we are living in such a fascinating era of technology that this teacher and taught gap is mostly covered by the help of technology.
As you have seen in the COVID that has happened last 2 years, how technology has played very vital role. And it has naturally paved the way for education to all the learners who have been learning the textbooks and the relevant materials from their home, from their laptop, etc. So people are very adopted. In India, people are very adopted. They immediately grasp the things that comes into the way. And it is said that the necessity is the mother of all inventions. So as there is being progress, the government of India since last 10 years was thinking that how the grassroots level changes should be done in the higher education. Not only higher education, but even in the primary and intermediate education, followed by the higher education. So after well thought deliberations, they have introduced 2020 NEP 2020, which basically talks about 5 plus 3 plus 3 plus 4. So earlier we have been used to a traditional way of learning, that is 10 plus 2 system, high school and then intermediate, then followed by the graduation and the post-graduation. So they have little bit modified it, disintegrated it 5 years, that up to the from the 3 years to 8 years, the students will learn different modes. Grade 1, grade 2, first 3 years will be the foundation course, and then followed by class 1, class 2, let me say, and then followed by another 3 years from age 8 to age 11, and then class 3, 4, 5, and then from 5 to 8 another 3 years, and then 8 to 12 another 4 years. They have disintegrated and said that the students should be focused uniformly all across the country under this pattern. And they are now focusing, the government of India and the state governments are focusing that how this can be implemented. Still, mostly education system, particularly the rural area education system, are not very much aware what exactly NEP 2020 is. But delegates that has come, they will be doing and they will just propagate this knowledge to their area of education. And people are really aware how it is being done, what is the reason or what is the concept of NEP 2020. In 1984, firstly it was, the slogan was mentioned by the then government that because we are focusing more on examination. Most of the institutions are now putting all the 70% energy in only the conducting examination, or earlier officers also said. So why not to dealing degree from the jobs? Because people are trying only for the examination. There are so many malpractices are also both in the just getting the degree. So why at all examination is required? This was a discussion started in 1984 back, some 20-25 years back. Why at all we require examination? Because mostly the students as well as faculty members, the university officials, university instructors, they are busy in 70% time in conducting examination and no focus in the learning methods. So why not to dealing the degree? So that discussion did not pick up much because people said that examination phobia is not there, then nobody will read. So why to without examination phobia, no student will read. Unless people are afraid of examination, they don't study. So they somehow, moreover, the economic factor was also there because mostly the earning of the university is from the examination fees, etc. So economics was also one of the major factors, as well as examination phobia was also a major factor. That is why it has been tried or dropped that the examination is essential. But in fact, we see that how we are concentrating more on examination than on the learning processes. And then you should see that in some examination system there is a process of continuous evaluation. You go to IITs, you go to IIMs, you never heard that people are busy in conducting examination. They have their own method of evaluation. They have continuous evaluation system. Daily students come to the classroom. Some marks have been earned by through attendance, through seminars, through assignment. So there is the other method of evaluation also in the top level of institutions like IITs and IIMs. Because there students come to the classroom, some assignments is given by the corresponding teacher. They just go to the teacher, they go to the library, they complete the assignment, they keep on busy. Because teachers
forces every student to learn somehow what is the assignment, what is the problem he is facing. So that is why the system is more successful. So why not to that to be implemented in the entire higher education? There should be continuous education system. Daily, a student come to the classroom and he earns some marks through attendance, through assignment, through classes, through quizzes. Why conduct annual examination, bi-semester examination? It consumes a lot of energy. So examination system is also going to be reformed. That has to be taken over by UP 2020. But before that, the learning processes must be there. How the students will learn from the classroom teaching, from the experts, and the flexibility and the multilingual focus more on the UP 2020. Because a student suppose is not able to continue for 4 continuous years of learning, he may drop after 1 year by getting some certificate course. He may drop after 2 years by getting some diploma courses. He may drop after 3 years by getting some graduation degree, and after 4 years he may be awarded an honors degree like that. So delinking, and suppose some students are not able to continue for 2 continuous years, he will not be declared as a fail. He may join some 3 years, 4 years gap after he may continue education for a second year, third year likewise. This system of education was also running in some few institutions like NAVIS is there, SLIDE is there in Punjab, where students are being admitted and every year they are being awarded by some certificate diploma degree. Suppose Punjab is one of the states where lot of small scale industry is there. So normally students doesn't continue for 4 or 5 years continuous education. So after 1 year they get the certificate here and then they are being consumed to the industry. After 2 years they get a diploma, then they will go to the higher education as well. Depending upon their aptitude, depending upon their financial strength, depending upon their skills, they can continue or discontinue the education. So NAP 2020 focuses on this also. So it is such a wide, flexible system of education that is being implemented. But slowly and steadily, the students are, the institutions are understanding what exactly NAP 2020 is there and what are the advantages of it. We know that students are, who come to the higher education after 10 plus 2 or you say now the system will be 5 plus 3 plus 3 plus 4, they will come to the higher education. After some 18 years, they will join the band of higher education. And when they will join the band of higher education, still as we saw that some of our previous presidents said that the grass enrollment is very less than 25% right now in UP. In some 7-8 years back, a study was made by the government of UP that about 25 lakh students at that time were appearing in the various boards, the UP board, CBSE board, ICSE board, etc. And out of those 25 lakhs, the students which are coming to the higher education, including the technical, including the medical, including the higher, it was only meagerly 5 lakhs. So it was roughly 20%. So where remaining 20 lakhs students have gone? Usually they have not been employed. They are not employed. They are lost somewhere in between. Where they have gone? They are not being employed. There is no such industry in the Uttar Pradesh. There are very few students are going outside the UP. So they are being consumed in society itself. They are busy with their family-based problems, traditions, their family-based employment is there. Some are helping with their fathers, their parents in their traditional like farming, etc., etc. They don't come to the higher education. So some 20%, 80% are being lost. They are not being consumed. They are not contributing to the country growth. So that is why the government has started thinking some 10 years back that why not we should make a flexible system of education. And that's why the idea that was conceived to introduce NAP 2020. So after 5-7 years of thorough deliberations, thorough study, looking into every aspect, it came into existence in 2020 under the dynamic leadership of Kasturi Committee. Government of India, the Cabinet Decision 29 July 2020, they have incorporated. But still people are not very much aware what exactly NAP 2020 is there.
although the government as well as the institutions are focusing that you have to adopt this, but what they have to adopt? What is the advantage? The students have to be taught about this. They have to be, they know that what are the advantages. And since the flexibility is there, that is, you know that any student can now learn the fine arts, they can learn the music system. So credit-based system, the CBSE is there, CBCS system is there. So CBCS system that any student can learn anything according to their aptitude, according to their skills, and the credit is being earned by them. And after earning certain number of credits, they will be awarded certificate, diploma, degree, whatever it is like. So that system still has to be spread out, and the students should be aware of what exactly it is, what are the advantages. Here the advantage is that suppose students are good in music, good in fine art, but parents tell them that no, you have to do engineering, you have to do medical, because there is a growth in the career. But his natural talent is in music, his natural talent is in photography. So, but they are forced by the society, including their parents. No, the career is only in engineering and medical. No career, no growth in other sector. It is not like that. You go to the Western country, though the students go to higher education or any education as per their attitude, what skills they are having. I have seen a child of 3 months age, their mother puts her child with his hand in a pond or in a bucket of water, so that she can feel the pressure of water and go for swim as a career. So at the 3 months itself age, they are so much aware that it is not only that bookish type of knowledge is only required for developing their career. Suppose students are putting her 3 years old child is putting her hands and legs and so making thrust on the water instead of right. He will start feeling the pressure of water itself. So naturally, because at the 3 months old child, the brain is underdeveloped, he or she will start learning the pressure of water. And later on, they become very good swimmers. And swimming is also a good career. In advanced country, every career is very good. Depending upon you excel well. Here we have arto type of education that you have to learn this only, you have to go science stream only, you have to learn science commerce stream only, because jobs are here only, and jobs in government jobs only. You know that only 2-3% jobs are government jobs. Remaining jobs are in the private sector or the corporate sector. And India is now a leading technology service, doctor service in advanced country. More than 2.5 lakhs skill-based doctors and engineers are working in advanced countries like America, Australia, Japan, Germany, etc., etc. So the thrust of education, particularly the professional education in advanced countries, is mostly by Indians, because large number of Indians are and they are just key holder of economy of their country, and they take the education from all countries, they serve to the advanced country. They are making their economy stronger. Ultimately, the sole aim of the education is to make the economy stronger, not to themselves. And they should be strong as well as the country's economy should be stronger. Why a country is not a superpower? Because they are economically stronger. America is stronger only because it takes control of the economy of entire world. China, why has become stronger in the last 20 years? Because they have taken the control of economy. Their products are being taken over all across the world, and they are earning a lot of money from the other countries than their. So economic is very important factor. Even if it is small family, depending upon the financial strength of that family, they will prosper, they will give the education. So ultimately, the finances and the economy is solely as one of the main aim for the education. And country like India, where we have very large population, almost second highest populated country in the world, and every 6th Indian is every 6% is supposed to be an Indian in the world.
And we have such huge human resources. And the government of India has now taken this note that we have not only skills, because some 10,000 years back when we were known to be the Vishnu. At that time, what was there? At that time, the great universities were in India. Nalanda University, Takshara University, they are great universities were in India. People from the other part of the world, including to learn in India, the higher education as well as the skill-based education. Moreover, the education that is traditional based education, a carpenter family, carpenter's son used to serve the society by learning from their family traditions only. We keep on copying. In my village, when I was just little younger, some 50 years back, I see that my village was self-sufficient. The carpenter was there, everyone was there. So no need to go outside. Each skill-based job was there in the village itself. But things have changed because now we have been globally connected and the technology has made the entire world a small village. We are now away with the click of mouse. And now we see that how with the click of mouse we are connected with the entire world. And this internet has made a great revolution. Which I suppose that after the fire and the discovery of the fire and the iron, this is one of the greatest discovery that humankind had made. That is internet. The net, through net, lot of services are being serviced. Entire world. You can send a mail any part of the country, almost free. No, only little data consumes certain. So now we say that we are now dependent more on the technology. We are living in an era of technology, where we are now connected very easily to the entire world. And NEP 2020 should be taking care of that. Not only that you go to the classroom, you go to the particular teacher and try to learn what exactly the skill-based education or the knowledge is there. So many platforms are there so that you can learn from online. So many experts lectures are there. Already there. You have the students have to register themselves and the commercial people are making use of it by one of the. So you see that so many educational platforms are now available. And students are very much aware. I may not be that aware when some new technology comes out. But a class 4, 5, 6 students are so technically advanced that he immediately grasps the thing, whatever comes in the new technology. And I some problem goes on, then I have to ask my 10 years why that you learn or this is the problem is going on. He makes the thing easier. So that is why the people are so adopted. Young brain in our country is also so adopted. So we are living in such a fascinating era that we are depending upon but the only thing that we are becoming the slave, because still the key holds with that one. Microsoft, Google, they are the platforms that know that in which part of the world, what is the requirement. They make use of this for their marketing. They know that Lucknow people takes biryani. So with the help of data analysis, they easily grasp which part of the world is demanding what, and accordingly they create the market. And now the education has become a market-oriented education. So the commercial people are taking advantage of it. Only the academia, the higher education particularly, are not still much behind. Because you see the technology being adopted by railways. Don't need to go to for booking for the railway. You don't need to go to the banks for taking the money. So they have taken so much advantage, so much use of the technology. But still, in higher education, we are not very much educated. Because our students are not very much learning the technology-based knowledge. So many skill-based programs are there. No need to, a student want to learn music, so many music learning methods are there in the students of physics can learn music from these platforms itself. So we have to see that whatever the changes that is being taken in the entire world, the NEP 2020 is already taking care of it, and they are not forcing that you remain in the classroom, remain in the particular set of teachers. You try to connect with the
great people all across the world. They are available, their lectures are available. You have to learn through them, and so that you have to get the online injunction, you get the certification itself. You get the online registration, you get to learn something, they will provide you certification. And those certifications are nowadays valid all across the world. Some you have to come some good course, you have to pass through some good music course, you appear to some fine arts courses and earn the credit online. These are being recognized by not only by India but across the world. So education pattern is also changing with the help of technology. And NEP 2020 that is so much flexible that it says that whatever you do, you have to excel yourself. And you can excel what your aptitude is. Suppose you have the aptitude of arts, you can't do wonders in the science. Okay. You have aptitude in the sports. Sachin Tendulkar is one of the examples. So many great sportsmen had they been forced to by their parents to become doctor engineer, did we have got such great talent? So many persons are there that when they are given an opportunity to work, to focus upon as per their skills, they do the wonder. And every brain is designed in a different way. And that brain, with the grace of God, we have to see, we have to identify our younger brain that what for they are. Being the parents, being a teacher, we have to nurture those brains according to as per their aptitude, and they should flourish, and naturally they will come when with the great human resource. This is now asset for India. The population is now not a curse for India. It is an asset. It is with a great human resource, great human minds, large human minds, we can now become the superpower. So higher education, because focus is in higher education, when the students come to the higher education, they have got some basic training before coming to the higher education. So that training that they are getting from coming back to the higher education, they must be as per their skills, as per their aptitude. And since the NEP 2020 is so much flexible that you can earn the credit whatever you do. Suppose you want to play chess, you play the chess. There is credit for chess, but music. In spite of the fact that you are taking the degree in the commerce, in the arts and the science, but you can earn the credit in the other interdisciplinary subjects also. The only thing that infrastructure is still required, because Lucknow University or some established university has the infrastructure or they are sufficient. But in the rural area, because 80% of the higher education are located in the remote area, they are not having the sufficient funds also to take the infrastructure available to their students. So that is the focus, that how they can cope up with the infrastructure problem that they are having in the particular remote area. Because 80% education of higher education is in the private sector, under the self-finance courses, and the self-financing courses are very poorly infrastructure. They have not proper faculty, they don't have good students as per their aptitude coming there. They don't go to the classroom. That is the main another social problem in the remote area. So that has also been slowly studied. It will take, any changes will take time. So down the line 10 years, as it is said that class enrollment ratio has to be doubled in the down the 10 years, means from 25% to 50%, means the education institutions that are already there, they can manage 50% GER, no problem. But only thing, the infrastructure has to be strengthened, particularly in the rural area institutions, and for that, every sector of the society, including the government, has to come up and contribute, because our young minds have great potential to become the superpower in the entire world. So I thank you very much, and whatever the NEP 2020 is there, the focus should be there. Wherever you do, educate your institution, the students that is coming in touch with you, so that
they learn what exactly NEP 2020, because people are still confused what exactly NEP 2020 is. And seminars like this will definitely elaborate, enlighten all delegates, and they will help you to promote in their vision what exactly NEP 2020 is. Thank you very much so much. Thank you so much, sir, for so beautifully elaborating on so many aspects of NEP, right from technology-based education, blended learning, to co-curricular activities, multidisciplinarity. And we cannot agree more with various aspects that you've mentioned, especially the last one where you stated that people have not properly understood, right from the implementers to those on which the policy is being implemented. So yes, seminars like this have this motivation as well to sensitize it, or to sensitize all of you about this policy. Next, I am slightly changing the schedule because Madam has a flight to catch. So I apologize to the other panelists, and we will first give chance to Squadron Leader Tulika Rani ma'am. So as she insisted that she was more interested in discussing about the co-curricular and the extra curricular activities, and also vocational and academic streams. So Madam, over to you, and yeah, thank you. Jai Hind, Namaskar to all present here. First of all, from this forum, I would like to congratulate the University of Lucknow, Department of Statistics, for organizing this wonderful seminar on such a relevant topic. क्योंकि जैसा अभी भी मंच पर आसीन प्रोफेसर वीके सिंह सर और रेखा सर ने बताया है कि हम सबको अभी भी ये समझने में समय लग रहा है कि NEP 2020 क्या है। तो आज क्योंकि इस विषय पर ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स रियली डिजर्व दिस क्रेडिट, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हम सबको इसका भागीदार बनाया है। और मैं if I start, because I'm sitting with such luminaries on the panel, it is my honor to share the stage with such academic luminaries. So I'm really thankful that I have been given this opportunity to be here amidst you, as Liz in front of you people. I would like to express my heartfelt gratitude to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, जिन्होंने कि चाहे वो G20 की अध्यक्षता हो भारत की, चाहे वो NEP हो, जो भी पॉलिसी सेंटर में बन रही हैं, जन भागीदारी के स्लोगन के द्वारा he has given all of us an opportunity to be a part of it. Now, no more any policy or any initiative of the government is only Delhi centric or only state capital centric. अब चाहे आप G20 में देख रहे हैं, जैसे कि मुझे एक सौभाग्य दिया गया है अपने हायर डिपार्टमेंट एजुकेशन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी गवर्नमेंट द्वारा कि मैं G20 की ब्रांड एम्बेसडर हूँ उत्तर प्रदेश की। तो मैं थोड़ा सा उस विषय पर भी बोल रही हूँ कि जन भागीदारी के नारे द्वारा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हम सबको ये मौका दिया है कि हम देश की हर पॉलिसी पर चर्चा भी कर सकें और उसका एक अभिन्न अंग भी बन सके। साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी अपने माननीय चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने भी मेरे अंदर ये फेथ दिखाया है कि प्रदेश सरकार को इतने इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक मोमेंट्स पर रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी मुझे दी। हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी मेरा आभार है, हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, जिन्होंने हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है G20 का। जैसा कि अभी हमने देखा कि बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आ रहा है हर स्तर पर। जैसा अभी हम लोग देख रहे थे इनॉग्रेल सेशन में, you saw a senior bureaucratic officer coming down in an academic session. तो ये बहुत ही बड़ा चेंज है पहले के सिनेरियो से कि अब ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स जो कि पहले किसी कंपार्टमेंट्स में रहे माने जाते थे, such a senior officer. My gratitude, my respect to Shri Dr. Sudhir Bogde ji also. इतने अपने बिजी शेड्यूल से वो समय निकाल कर एक एकेडमिक सेशन में आ रहे हैं, ये इस बात का द्योतक है कि अब ब्यूरोक्रेसी भी न सिर्फ पॉलिसी बना रही है बल्कि उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। So he deserves the credit for that initiative too. And obviously Professor Alok Kumar Rai, Honorable Vice Chancellor, Lucknow University, who is an example of a leader par excellence. हम सब ने देखा है कि किस प्रकार उनकी डायनेमिक लीडरशिप में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए NAAC में
A++ ग्रेड प्राप्त किया है। और जैसा मैंने अपने इनॉग्रल सेशन में बताया, हाउ मेनी इनिशिएटिव्स हैव बीन ऑलरेडी टेकन टू इम्प्लीमेंट NEP 2020 already by Lucknow University. So when we have such leaders amongst us, right from our Honorable Prime Minister to our Chief Minister, to bureaucratic officers, to our ministers, and to our Vice Chancellors, and Vice Chancellors, we are very sure that any policy that is made at the central level or at the state level will definitely be implemented in letter and spirit. Now coming towards the topic NEP 2020, सबसे पहले तो कोई भी काम जब होता है तो क्यों होता है ये जानना बहुत जरूरी है। There were certain matters which were a concern in our educational scenario. Educational policies पहले भी आई थी, जैसे कि हम सब aware हैं। There was one in 1968, another one which came in 1986, which was revised in 1992, and now this policy came NEP 2020. तो एक कारण था उसका कि क्यों ये NEP 2020 हमें लानी पड़ी, क्योंकि बिना कारण के कोई भी कार्य संभव नहीं है, कोई भी कार्य होता नहीं है। अभी तक जो हमारी एजुकेशन थी वो फ्रेगमेंटेड थी, जैसा हम सब देख रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा हायरार्किकल स्ट्रक्चर था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। वी हैड डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, और यूनिवर्सिटीज में भी कोई डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज थे, कोई एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज थे। So different complex nomenclatures of universities were there. फिर उनके affiliated colleges थे। तो एक बहुत ही fragmented infrastructure जैसा था educational scenario में हमारा, उसको भी यहाँ पे address करने की कोशिश NEP 2020 में की गई है। That fragmentation will not remain. Because I come from the military background, I will also compare it slightly with how things happen in military and how the same spirit now has been sought to be implemented in our civil stream, in our educational scenario too. When we respect military forces, we do so because they implement, they execute a task in a very comprehensive, integrated manner. Because मेरा specialization air traffic control services में था, I was an administrative officer and specialized in air traffic control services. जब एक जहाज उड़ता है, a pilot flies an aircraft, लेकिन पीछे की बात अगर आप सोचें, उस एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस कोई और करता है, उस एयरक्राफ्ट को डायरेक्शंस कोई और देता है, जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस ऑफिसर्स देते हैं। उस एयरक्राफ्ट के लिए जो रनवे है जाने के लिए, उस रनवे की मेंटेनेंस कोई और करता है, रनवे पे जो कंपोनेंट्स लगे हैं उनकी देखभाल कोई और करता है। इसका मतलब एक पूरा का पूरा सिस्टम है, जो कि एक एयरक्राफ्ट जब उड़ता है तो द एंटायर सिस्टम वर्क्स इन टेंडम, और तब जाकर one successful flight is undertaken. तो वो जो integration है, seamless integration of various operations, that deserves respect in the armed forces. उसकी वजह से टाइम बिल्कुल dot on seconds हो पाते हैं वहाँ पर। वही integration अब हमारी NEP के द्वारा educational scenario में भी लाने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए आप देखेंगे दूसरा एस्पेक्ट जो इसका मुझे बहुत ही ज्यादा सशक्त लगता है, तो ये है कि कोई भी पॉलिसी हमारे देश में बने तो हमारे देश के हिसाब से, because we can seek inspiration from global examples, but ultimately we have to survive in our country, and that is why any policy that is created has to be rooted in our Indian ethos and culture and environment. NEP deserves credit on this particular front very much, because अभी तक की जितनी पॉलिसीज आई थी उसमें दो चीजों पे ध्यान देने की कोशिश की गई थी, that is inclusive education and equitable education. Access जो थी education की उसको provide करने पर ज्यादा ध्यान था। Universal education सबको मिल सकता है, and it showed results also. जैसा हमने देखा कि प्राइमरी लेवल पर एजुकेशनल एनरोलमेंट रेशियो ऑलमोस्ट 100% हमारा हो गया, लेकिन जब हम हायर एजुकेशन के लेवल पर देखते हैं तो वही फ्रेगमेंटेशन की वजह से एंड ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स वो लेवल आज भी कम है। क्लोज टू 26% है एनरोलमेंट रेशियो आज हमारा हायर एजुकेशन में। तो इतना बड़ा ड्रॉप क्यों है? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में रूटेड। NEP ने जो कोशिश की है वो ये कि हमारी एस्पिरेशंस क्या है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स, तो वो कैपिटल रिसोर्स वैसा होना चाहिए जो फ्यूचर की एस्पिरेशंस को मीट कर सके। पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो फ्यूचर में डिमांड्स होंगी, टास्क होंगे, उनको पूरा करने के लिए केपेबल हो सके, सशक्त हो सके। और फ्यूचर की डिमांड्स क्या है? आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं
दुनिया के सामने, मानवता के सामने। उनमें से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज की है। दूसरी ये है कि हम 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पर जी रहे हैं। The entire technological advances have been really rapid across the knowledge landscape. जिस तरह से टेक्नोलॉजी आई है, चाहे वो बिग डेटा हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, चाहे वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एंड रैपिड चेंजेस हैं ये। तो आगे की जो जनरेशन की रिक्वायरमेंट है, जो वर्क की रिक्वायरमेंट है, दे आर गोइंग टू बी टेक्नोलॉजी बेस्ड। सिमिलरली हम अपने स्टूडेंट्स को खाली एम्प्लॉयबिलिटी के लिए केपेबल नहीं बनाना चाहते, बिकॉज एजुकेशन का जो गोल है दैट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ऐसा इंडिविजुअल जो अपने सारे पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन करके इज आल्सो एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट द कम्युनिटी फेसेस, दैट द नेशन फेसेस एंड द एंटायर ह्यूमैनिटी फेसेस। क्योंकि हमारा जो इंडियन फिलॉसफी आप देखेंगे, उसका भी मूलभूत सार यही है कि अहम ब्रह्मास्त्र के विषय में हम जब बोलते हैं, या आप अगर देखें हमारी नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, उदानपुरी, वल्लभी जैसी यूनिवर्सिटीज को, वहाँ हमेशा मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च ही हुआ करती है और बहुत लार्ज इंस्टीट्यूशंस हुआ करती है। तो वो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम पढ़ाई और रिसर्च उन यूनिवर्सिटीज में होती, क्योंकि एक इंडिविजुअल के अंतर्गत टैलेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। If I talk about myself individually, I have served in the Indian Air Force also, which is an entirely different field altogether. I have climbed 24 mountains across the world, which comes into sports again. And I do speak. I'm a public speaker, so communication comes under the soft skills. I do write, so that comes under the academics. And I have now, as my second career, officially joined the academics. So if you see one person, I'm just one example. I'm sure that all of us have these multiple capabilities. So individual के holistic development की जब हम बात करते हैं, so all these talents of an individual have to be taken care of, and that is why this interdisciplinary. पर उससे एक कदम और आगे बढ़कर हमने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, यानी कि मेरे अंदर वो सारे तत्व हैं जो ब्रह्मांड में हैं। इसका अर्थ ये भी है that I fulfill my responsibility towards myself, and thereafter I become capable to give something back to the society and humanity. तो वो हम वापस तब दे सकेंगे जब हम तैयार होंगे, जो आगे के चैलेंजेस हैं उनको फुलफिल करने के लिए मीट करेंगे। और आगे के चैलेंजेस आप देखेंगे, नो प्रॉब्लम इज सिंगल डिसिप्लिनरी। अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो हमें उस रिसर्च की आवश्यकता पड़ेगी जो कि बायोटेक्नोलॉजी को भी जानती हो, जो कि बाकी टेक्नोलॉजीज को जानती हो, जो कि केमिस्ट्री के बारे में ज्ञान रखती हो, जिसको ये भी पता हो कि फिजिक्स कैसे काम करता है, जियोग्राफिकल डिस्पोजिशंस क्या हैं उसके विषय में भी पता हो, और साथ ही साथ सोसाइटी कैसे काम करती है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज कैन नॉट बी अवॉइडेड और मिटिगेटेड ओनली बाय टेक्नोलॉजी। जैसे कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन के लिए लाइफ नाम का कॉन्सेप्ट दिया COP26 में। लाइफ में उन्होंने कहा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, दैट मीन्स हर व्यक्ति का बिहेवियरल चेंज, धीरे धीरे रोज रोज की जिंदगी में जब हम बिहेवियरल चेंज लाएंगे, दैट विल आल्सो कंट्रीब्यूट इन मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब हम जब अपनी सोसाइटी के विषय में अवेयर हो सकेंगे, सेंसिबल हो सकेंगे, तभी हम किसी प्रॉब्लम का सलूशन ला सकते। इसलिए हमें मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्चेस चाहिए। अभी तक की जो हमारी एजुकेशन थी, बिकॉज देयर वर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट कंपार्टमेंट टाइप स्टडीज एंड रिसर्च, उसको चेंज करके अब वी आर ट्राइंग टू मेक आवर स्टूडेंट्स sensible towards the society, sensible towards our Indian ethos, Indian problems, challenges, as well as sensible towards the global challenges. And to meet them, they need to have cross-disciplinary knowledge. तो उसके लिए interdisciplinary research की हम बात कर रहे हैं। दूसरा एक और भी है कि अभी तक जैसा हम देख रहे थे STEM, स्पेशली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स को इंग्लिश में मेजरली पढ़ाया जाता है। इस NEP में ये बहुत बड़ा फोकस है टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेजेस, क्योंकि जब हमारे बच्चे जो रूरल एरिया के हैं वो आते हैं तो वो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में, इंडियन लैंग्वेजेस में पढ़ के आते हैं। Even in our constitution, we have adopted 22 languages in the 8th schedule. So how can we say that we will teach these higher educational or professional courses only in English? It creates a hurdle to those students,
क्योंकि उनको शायद पहले साल में आते आते समझने में या अपने आप को अडेप्ट करने में ही टाइम निकल जाता है। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव इस फील्ड में एनईपी के अंतर्गत लिया गया है। अभी अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंजीनियरिंग का कोर्स भी इंडियन लैंग्वेजेस में चालू किया और इसके साथ साथ इंडियन लैंग्वेजेस से हमारा मतलब है अक्रॉस द स्ट्रक्चरल लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस भी है उसमें, संस्कृत भी है। संस्कृत को हम एक ऐसी भाषा जनरली आम जनमानस में स्थिति बनी हुई है इस समय पे कि हम उसकी रिस्पेक्ट तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम उसमें कन्वर्सेंट नहीं है आज। आप सोच के देखिए कि इंडो आर्यन लैंग्वेजेस की मदर है संस्कृत। ज्यादातर इंडो आर्यन लैंग्वेजेस संस्कृत से डिराइव होती है। हमारा जितना भी एशियंट लिटरेचर है, चाहे वो मेडिसिन पर हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी पर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर हो, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम संस्कृत में लिखा गया है। So if our students do not know Sanskrit, aren't we depriving them of such a vast literature and knowledge? इसलिए अब संस्कृत यूनिवर्सिटीज को भी मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की बात कर रहे हैं और संस्कृत को इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं एनईपी 2020 में विद अदर सब्जेक्ट्स। इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाएगा उसको, उसमें बाकी सब्जेक्ट संस्कृत में पढ़ाए जाएंगे। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं संस्कृत सीखूं ताकि मैं खुद वो सब पढ़ सकूं। अब सोचिए कि हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, ज्ञान से भरे हुए हैं। Each child of this nation should be aware of that knowledge. तभी तो हम वो ज्ञान दुनिया में बांट सकते हैं। तो ये वाली बात एक है। और इंडियन एथोस की जब हम बात करते हैं, कंपैशन, लव, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन वैल्यूज के प्रति रिस्पेक्ट और नेचर के साथ हार्मनी हमेशा से ही हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे। और जब हम अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन दें तो सिर्फ उनको हम एक एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार ना करें बल्कि उनको ऐसे व्यक्ति बनाएं जो डीपली रूटेड है इन आवर कल्चरल एथोस। तो उसकी बात भी ये हमारी एनईपी करती है। वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें अगर, तो अभी तक एक स्टैटिस्टिक्स में यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। हमारे यहाँ पर सिर्फ 5% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको वोकेशनल ट्रेनिंग का एक्सपोजर मिल पाता है। अगर आप कंपेयर करें तो चाइना में इसमें करीब 21% बच्चे हैं। अगर आप कंपेयर करें यूएस में तो 56% स्टूडेंट्स वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं। जर्मनी में 75% और साउथ कोरिया में 96% स्टूडेंट्स। तो आज जो हम देख रहे हैं कि एक अनएम्प्लॉयमेंट वाला सिनेरियो बहुत ज्यादा बना हुआ है हमारे स्टूडेंट्स के बीच में, बिकॉज एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। इज इट फीजिबल? वी शुड आस्क आवरसेल्फ बिफोर आस्किंग द गवर्नमेंट, इज इट फीजिबल? जब तक हमारे बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारे ग्रास रूट्स पर कैसे एम्पावरमेंट आएगा। बहुत सारे रूरल एरियाज के बच्चे हैं, ट्राइबल एरियाज के बच्चे हैं, उनको जो नॉलेज मिलती है ट्रेडिशनली थ्रू जनरेशंस, उस पर भी तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इस एनईपी का जो एक मेजर पॉइंट है वो ये कि अब वोकेशनल ट्रेनिंग को किसी कंपार्टमेंट से हटाकर इंटीग्रेटेड वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की जाएगी। नॉर्मल जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी और बचपन से दी जाएगी। तो इसीलिए 6th क्लास से ही हमने देखा इस एनईपी में वोकेशनल ट्रेनिंग के पीरियड्स होंगे। आप सोचिए कि एक बच्चा जो 12th के बाद निकलेगा, he or she is already capable of having an alternative employment in some particular skill. कितना empowerment उस बच्चे को मिलेगा यहाँ। उसके बाद अगर हम बात करें रिसर्च की, because हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये एजुकेशन सेमिनार कराया है। Across the higher education spectrum अगर हम देखें, research is an important aspect of higher education. तो जो हमारी यूनिवर्सिटीज है हम बात कर रहे हैं कि या तो रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज बने या टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज बने, बट रिसर्च हैज टू बी द मेजर फोकस ऑफ यूनिवर्सिटीज नाउ। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस को हम बढ़ाने की बात यहाँ पे बच्चों में कह रहे हैं। जब आप रिसर्च करेंगे तभी तो इनोवेटिव सॉल्यूशंस आ सकेंगे प्रॉब्लम्स के। इफ वी गो बाय ऑलरेडी एक्वायर्ड नॉलेज, अगर हम सिर्फ नॉलेज डिसेमिनेशन पे ही रहे और नॉलेज जनरेशन ना करें, नॉलेज का प्रोडक्शन ना करें, तो स्टैग्नेशन आएगा। तो इसीलिए हम रिसर्च की बात कर रहे हैं। और क्योंकि रिसर्च के क्षेत्र में आज भी हमारे देश में एक डिस्पल सिचुएशन है कि R&D पर सिर्फ 0.66% ऑफ जीडीपी हमारे यहाँ खर्चा होता है। अगर हम देखें तो चाइना में ये खर्चा 2.1% है। अगर हम देखें इजराइल में 4.3% है R&D पर खर्चा। तो हमारे यहाँ पे R&D ऑलरेडी थोड़ा सा लेगिंग बिहाइंड है।
हमने इसीलिए इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ऑलरेडी फंक्शनल कर दिया है, जो कि सीड ग्रांट्स देगा यूनिवर्सिटीज को रिसर्च करने के, और इसमें यह भी फोकस है कि जब आप करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो रिसर्च पर वहां पे फोकस हो और उसको एडिशनल वेटेज दिया जाए। लेकिन रिसर्च माइंडसेट ऐसे ही नहीं आता। रिसर्च आप तब कर सकेंगे व्हेन यू ऑलरेडी हैव दैट काइंड ऑफ एन एप्टीट्यूड। जैसे एक एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए एक एप्टीट्यूड की आवश्यकता होती है, पहाड़ चढ़ने के लिए एक एप्टीट्यूड की आवश्यकता होती है। However much physically fit a person is, अगर हमारा मेंटल एप्टीट्यूड नहीं है प्रॉब्लम्स को एंजॉय करने का, तो हम पहाड़ नहीं चढ़ सकते। इसी तरीके से रिसर्च के लिए एक माइंडसेट डेवलप करने की आवश्यकता है। एंड NEP scores majorly here because जब हम प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम होता है शुरुआत से बच्चे का। प्री प्राइमरी एजुकेशन हैज बीन फोकस्ड ऑन प्ले बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड एजुकेशन। सेकेंडरी लेवल पर जब आएंगे आप तो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने की बात यहाँ पर है। जब आप और हायर एजुकेशन की तरफ आएंगे तब आपको फैसिलिटीज दी जाएंगी और वोकेशनल ट्रेनिंग और रिसर्च दोनों इंटर रिलेटेड रहेंगी। सो यूनिवर्सिटीज अब सिर्फ एकेडमिक्स पे काम नहीं करेंगी, दे विल ऑल्सो collaborate with the local industries, with the incubation centers, with the startup labs। तो ये सब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे और इसलिए आपको अपने स्टूडेंट्स को हमारे एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सके। बिकॉज थ्योरी और प्रैक्टिकल का जब तक हम एमलगेमेशन नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई भी पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। एक बात पर यहाँ और ध्यान देना चाहेंगे, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। बहुत सारे बच्चे हमारे हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाते हैं। So that outflow of students, the focus has been to check that, minimize that outflow of students। जैसे कि हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर ने भी कहा कि हमारी यूनिवर्सिटीज बाहर जाके अपना कैंपस खोले और हम इस पे भी ध्यान दें that foreign students come to our country। और हमारे स्टूडेंट्स को अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज से कोई डिग्री चाहिए तो NEP के अंतर्गत उसका प्रावधान किया गया है। We will sign memorandum of understandings with foreign universities. It will be a legislative work और उसमें 3 प्रकार की डिग्री स्टूडेंट्स ले सकेंगे, ट्विनिंग डिग्रीज, ड्यूअल डिग्रीज एंड जॉइंट डिग्रीज। तो उसमें थोड़ा सा एक डिस्टिंक्शन है इन तीनों प्रकार की डिग्रीज में। आप अपने देश में रहते हुए दूसरे देश की यूनिवर्सिटी से भी डिग्री ले सकेंगे। यहाँ पे कुछ क्रेडिट लेंगे तो दूसरे देश की यूनिवर्सिटी में क्रेडिट माना जाएगा। कुछ समय के लिए आप वहां जाके पढ़ेंगे, वो क्रेडिट भी आपका ज्वाइन हो जाएगा अपनी यूनिवर्सिटी में जब आप रिसर्च कर रहे होंगे। तो आप साइमल्टेनियसली 2 डिग्री कर सकते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी से और बाहर की यूनिवर्सिटी से भी। हाँ, इसमें थोड़े से स्ट्रक्चरल काम करने की आवश्यकता हमें रहेगी क्योंकि एकेडमिक कैलेंडर हो सकता है यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट हो। हाउ वुड वी कैटर फॉर स्टूडेंट मोबिलिटी, फैकल्टी मोबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन, वो सब पे काम करने की आवश्यकता अभी और रहेगी। बट दिस इज रियली अ वेलकम स्टेप। और एक इसमें बात और है SEDGs, बिकॉज जैसा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 कहता है that education should be, the focus of the education should be to provide inclusive, equitable and quality education to all as well as ensure lifelong learning opportunities for everyone। तो यहाँ पे हम जो हमारे सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं उनको भी जोड़ने की बात करते हैं। बिकॉज इंडिया गांव में रहता है, हमारी अर्बन पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 29% है इसमें, रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। और वहाँ पे जो ये ब्रॉड टर्म है SEDG, सोशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, इट एनकम्पासेस एवरीबॉडी। इट एनकम्पासेस वुमेन आल्सो, इट एनकम्पासेस स्पेशली एबल्ड पीपल as well as रूरल एरियाज में रहने वाले लोग, अर्बन स्लम्स में रहने वाले लोग, या हिस्टोरिकली जो थोड़े डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं हमारे SC/STs, वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। उनके लिए स्टूडेंट सपोर्ट का एक प्रोविजन इसमें रखा गया है और स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाने की बात NEP में की गई है ताकि एजुकेशन उन तक पहुंचे। ये कहा गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास कम से कम एक यूनिवर्सिटी या फिर एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ताकि वो एक्सेस स्टूडेंट्स को मिल सके। जो एक और खास बात रही है, सिर्फ 2 पॉइंट्स मेरे यहाँ बचे हैं। एक और खास बात जो है, होल स्पेक्ट्रम हैज बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, वी हैव स्टूडेंट्स इन द सेंटर, देन वी हैव द फैकल्टी मेंबर्स।
We also have the governance of the educational institutions. We have the financing and the regulation. So ये सारे के सारे aspects यहाँ पे NEP में cover किए गए हैं. क्योंकि students की बात करें तो हमने उनको flexibility provide कर दी. Now you as a unique person utilize all your unique and multiple talents. That flexibility is given to you. Multiple exit और entry points जो आपको दिए गए हैं graduation में भी, वो भी इसी का एक फैक्टर है. फैकल्टी की अगर हम बात करें, because of course till the time you have an empowered and motivated, talented faculty, any policy would remain on papers. तो फैकल्टी के भी प्रमोशन, करियर प्रमोशन के भी यहाँ पे बात की गई है और साथ साथ उनको ऑटोनॉमी देने की. We are talking of phasing out these affiliated colleges over a period of 15 years. और तब हम हर कॉलेज को ये कोशिश है इस NEP के तहत कि ग्रेजुअल ग्रेडेड एक्रेडिटेशन के द्वारा ग्रेडेड ऑटोनॉमी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रदान कर दी जाए. आप एक हब एंड स्पोक मॉडल बना, क्लस्टर बना, क्योंकि जब भी आप बिखरे बिखरे रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं, तो रिसोर्स एफिशिएंसी नहीं आ पाती. अगर आप एक साथ रहेंगे, आप सोचिए जैसे प्रोडक्शन होता है किसी चीज का, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे अखबार में टेक्सटाइल पार्क्स 7 स्टेट्स में बनाने की घोषणा भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने की. तो अगर क्लस्टर में आ जाए, एक ही जगह पे आपके जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं किसी प्रोडक्शन के वो मिल जाए, तो आपका जगह जगह जाना बच जाता है, रिसोर्स एफिशिएंसी आ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. वैसे ही अब सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्लस्टर बेस्ड बनाने की बात यहाँ पे की जा रही है. सो ये सारे पॉइंट्स इस NEP में कवर कर लिए गए हैं ऑलरेडी. हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है. उसमें 4 इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स रहेंगे. एक रेगुलेशन कमेटी बनेगी, उसमें काउंसिल बनेगी, दूसरा फंडिंग ग्रांट्स काउंसिल बनेगी, एक आपकी जनरल काउंसिल बनेगी जो कि एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को सेट करेगी. तो इन सब के देखते हुए पूरा का पूरा एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एजुकेशन विल बी टेकन केयर ऑफ. गवर्नेंस जो रहेगा, रेगुलेशन जो रहेगा, लाइट वर्सटाइल, तो ओवर गवर्नेंस ओवर रेगुलेशन नहीं रहेगा, बट अकाउंटेबिलिटी बनाने पर जोर दिया जाएगा इसमें. यहाँ बस इतना कहना चाहूंगी, जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी कहा है कि ट्रेडिशन प्लस टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन प्लस टेक्नोलॉजी इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया. And now in present times India already is leading on the economic front, geopolitical front, as you are seeing. In present times India is leading the G20. G20 is the most powerful, one of the most powerful groups at this juncture, because वहाँ पे developed or developing countries are on a equal platform. You try to imagine what a massive achievement on the Indian part it is. जब हम पहले बात करते थे developed countries used to decide direction of the world, today India is doing. Developed countries decide करते थे कि डेमोक्रेसी के नाम पे किस कंट्री में जाके गवर्नमेंट का चेंज कर दिया जाए. Today India is in a position to mediate geopolitically between two strong groups of this world. एक तरफ पूरा US and NATO है, दूसरी तरफ रशिया and the other European powers, nation powers हैं. उसके बीच में इंडिया है सच अ स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी. तो जब इकोनॉमिकली, जैसे कि अगर आप IMF का प्रेडिक्शन देखें 2024 के लिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्रेडिक्शन है that 15% of the global growth is predicted to come from Indian economy. Try to imagine that massive impact. जो कोविड के बाद इकोनॉमी का रिसर्जेंस है, इंडिया का ज्यादा है. ट्रेड कम होने की बात हो रही है ग्लोबल, 5.4% से लेकर 2.4% ग्लोबल ट्रेड डिक्लाइन होने का प्रेडिक्शन है, while the Indian economy is set to grow at 6.5%. तो अगर हम जियोपॉलिटिकल लेवल पर लीड कर रहे हैं, अगर हम इकोनॉमिक लेवल पर लीड कर रहे हैं, why don't we lead on the educational front also? And this NEP, National Education Policy 2020, is an important factor, enabling factor towards getting that position. और इसीलिए इसमें सिर्फ बात यह है कि हम रूटेड रहेंगे, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था. डिग्निटी ऑफ लेबर की बात है, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन को अब एक अलग थलग सेपरेट सेगमेंट की बात नहीं है. इंटीग्रेटेड वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइडिंग डिग्निटी ऑफ लेबर एंड सर्वाइवेबिलिटी स्किल्स टू आवर पीपल. दूसरी बात ये कि हमारे दरवाजे खुले हैं ताकि हम दुनिया की हर खूबसूरत चीज, अच्छी चीज, अच्छे कॉन्सेप्ट्स एंड पॉलिसीज को इन्वाइट कर सके, बट वी आर डीपली रूटेड
in our culture and ethos. So we will not be blown away by anyone. जो हमारे मॉडल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा ओरिजिनल मॉडल है, हालांकि हमने लिए हैं बाकी लोगों से उसमें कुछ फैक्टर्स. Similarly, this NEP is very much Indian in thought, and what it strives at the utmost is, याद होगा आपको मैकॉले का वो फेमस स्टेटमेंट कि हम क्या बनाना चाहते हैं एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा. याद होगा, हम सबको याद है दैट फेमस स्टेटमेंट कि हम बनाना चाहते हैं इंडियंस ओनली इन ब्लड बट इंग्लिश इन इंटेलेक्ट, deeds and spirit. Today this NEP is changing, reversing that entire spectrum and thought, because it is striving to create Indians in thought, not only in thought, Indians in thought as well as spirit, intellect and deeds. Indians, not only Indian citizens, but also empowered to be global citizens. Thank you so much for giving me this. Thank you so much, ma'am. The flow and the voice modulation with which you were speaking, the voice was still echoing in our ears. Thank you so much, and you very rightly said it. So since ma'am has to catch a flight, so we are giving her, so she'll be leaving us just now. I invite Dr. Puneet Mishra, Department of Computer Science, to felicitate Squadron Leader Tulika Rani. I would like to introduce my Muslim qualities. So again, continuing the discussion, I would like to invite Dr. Subhash Mishra to throw some light on curriculum structure, ABC implementation and examination reforms. Actually, from the morning, we were listening about the implementation of NEP 2020. And the one word was used by Honorable Vice Chancellor, sir, letter and spirit. So I'll talk more about the spirit rather than letter. NEP 2020. There is a fundamental difference in the nomenclature of the name NEP and NPE. Earlier it was NPE, you know, National Policy on Education, and now it is a National Education Policy. So the first thing I would like to share with this, what is the difference between this NEP and NPE? The moment we say National Education Policy, it is focusing more on national education, and this is the spirit which NEP 2020 draws. अगर हम भारतीय ज्ञान, भारतीय परंपरा, भारतीय विचारधारा, भारत एक राष्ट्र की अगर बात करें, तो जो NEP 2020
शुरुआत करती है कि मनुष्य का समग्र विकास। अभी मैडम कुलिका जी की बात हो रही थी, मैं सुन रहा था, और प्रोफेसर डीकेसी सर भी ये बात बोल रहे थे कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को देखते हुए भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो जो 5 पिलर्स हैं, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। एक्सेस की पहुंच, एक्सेस तक हमारी जो दौड़ थी वो शुरुआत आजादी के बाद से रही। इक्विटी भी बहुत हद तक हमने इंश्योर करने का प्रयास किया आजादी के बाद, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण परिवर्तन इस एनईपी 2020 में दिखाई देता है वो ये है कि केवल इक्विटेबल नहीं, समग्र समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सबकी पहुंच। यानी जब यह बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा आशय है कि हम इक्विटेबल जस्ट एजुकेशन फॉर ऑल, यह अकाउंटेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी की ओर इशारा करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात जब हम कर रहे थे तो पॉलिसी लिखती है कि 2015 में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एसडीजी 4 को स्वीकार किया कि 2030 तक हम इसे अचीव करेंगे। मैं यहाँ पे एक बात और से कहना चाहता हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बर्टन कमीशन जिसका इसकी रिपोर्ट है आवर कॉमन फ्यूचर, उससे नहीं प्रभावित रहा। शायद हमें यह अपने युवा पीढ़ी को, अपने मित्रों को यह जानने की जरूरत है और इस बात को जानते हुए और ज्यादा इसको हाईलाइट करने की जरूरत है कि यह हमारी भारतीय संस्कृति का अंग रहा है। जब हम कहते हैं ईसावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजीथा मार्गः कशस्त्रदिनम्, नथिंग बिलोंग्स टू मी, enjoy all the gift from the God with the spirit of renunciation। जब हम ये बात कहते हैं, यह हमारी संस्कृति में रहा है, यह हमारे अंग में रहा है। और एक बात और कहना चाहूंगा, यह केवल किसी सूत्र वाक्य में नहीं है, यह भारत के गांव में, भारत के हर नागरिक के, भारत के हर उस स्त्री और पुरुष के विचार, आचार, व्यवहार में रहा है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो ऐसा सूत्र वाक्य हो जिसे किसी ग्रंथ की आवश्यकता। तो अभी सर ये कह रहे थे कि परंपरा, निश्चित रूप से हमारी भारत की परंपरा ऐसी रही है, हमें परंपरा के साथ विज्ञान का, परंपरा के साथ ज्ञान का यह समावेशन, फ्यूजन करने की आवश्यकता। और इसीलिए जब करिकुलम की बात की जा रही थी, बॉबिट एक पुस्तक लिखता है करिकुलम, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि वैज्ञानिक रूप से करिकुलम का पहला स्पेशलिस्ट मानते हैं। 1918 में एक पुस्तक लिखता है। 1918 में जो एक पुस्तक लिखता है वो कहता है कि जो शिक्षा है, करिकुलम है, पाठचर्या है, उसके 2 मुख्य कार्य। पहला एबिलिटी टू लिव और दूसरा एबिलिटी टू प्रोड्यूस। यानी जो एबिलिटी टू लिव है वो क्या है? जीविकोपार्जन। सॉरी, एबिलिटी टू लिव है वह ज्ञानार्जन, हम जीवन कैसे जिए। और एबिलिटी टू प्रोड्यूस यह है उत्पादन। जो ये ज्ञानार्जन, एबिलिटी टू लिव, यह हमें बताता है कि हम अपना जीवन, अपना विचार, अपना आचार किस प्रकार है। यह बुद्धिजीवी वर्ग तैयार करता है। और जो एबिलिटी टू प्रोड्यूस है वह है, जैसा कि मैडम अभी मैकाले का नाम लेके कह रही थी, यह हमारे यहाँ बड़े लंबे समय तक यह विचारधारा हमारी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित और नियमित करती है। मैकाले के आने के बाद जो एक तीसरा वर्ग जुड़ा, जो एबिलिटी टू थिंक या एबिलिटी टू लिव और एबिलिटी टू प्रोड्यूस दोनों से हटकर, जैसा कि मैडम ने जाते जाते वो बात कही, पहला तो बुद्धिजीवी वर्ग बनाती थी और दूसरा जो श्रमजीवी या उद्यमी बनाती थी, उससे हटकर परोपजीवी वर्ग बनाती थी। यानी हमें एक ऐसा सर्टिफिकेट ओरिएंटेड हमें शिक्षा देनी शुरू की कि एक सर्टिफिकेट मिल जाए जिस पर लिखा हो A++ या A ग्रेड,
और उसके आधार पर नौकरी मिल जाए और हम तब तक उस पर आश्रित रहेंगे जब तक वो नौकरी मिली रहेगी। यानी सेवा वर्ग जो तैयार किया, सर्विस क्लास तैयार किया, ये दोनों को जो रूट से हमारे काटा है शिक्षा व्यवस्था के इस हिस्से को, या हमारे अपने आप की एक कह सकते हैं बीच के काल की दुर्बलता रही है। पहले की बिल्कुल नहीं रही है। पहले हमारी शिक्षा परा और अपरा विद्या यह बिल्कुल वही थी जिसे हम एबिलिटी टू लिव और एबिलिटी टू प्रोड्यूस की बात करते हैं। वह संपूर्णता के साथ विषयों को लेकर चलने वाली थी। और इसीलिए जब ये कहते हैं हमारे यहाँ शिक्षा नहीं विद्या, क्योंकि शिक्षा तो वह उन एक छोटा सा हिस्सा रहा है हमारे यहाँ। शिक्षा का व्याकरण निरुक्त ये जो वेदांत के 6 हिस्सों में से एक हिस्सा रहा है, जो केवल ज्ञान के अर्जन की पद्धति के रूप में रहा है। हमारे यहाँ ज्ञानम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म की परंपरा रही है। और वो कैसा ज्ञानम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, जब हम ऐसा ब्रह्म कहते हैं तो कई बार ऐसा लगता है हमको स्पिरिचुअलिटी की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कैसा ज्ञान? जो जब कहते हैं ज्ञानम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, तो हम कहते हैं ऐसा ज्ञान जो सत्य चित्त आनंद युक्त है। सत्य चित्त कॉन्शियसनेस और आनंद, जब सत्य चित्त आनंद तीनों से युक्त ज्ञान हम प्रदान करते हैं, वह हमें ब्रह्म की ओर ले जाता है, वह हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, वह हमें दासता से आगे ले जाता है। और शायद एनईपी 2020 जब करिकुलम की बात करेंगे उधर इशारा कर रही है कि आज हमें आवश्यकता है कि अपनी पाठ्यचर्या में हम इस तरह सुधार करें, अपनी पाठ्यचर्या एक बार फिर से पुनरीक्षित करें। हमें चाहिए क्या हमें केवल विज्ञान चाहिए? यहां मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा, ज्ञान और विज्ञान ये दो विरोधी चीजें नहीं है। ये एक ही आयाम के, एक ही कहते हैं फलक के अलग अलग बिंदु हैं और उनका कह सकते हैं अवस्थाएं हैं। जो ज्ञान पद है वो विवेक सम्मत प्रज्ञा युक्त ज्ञान को इंगित करता है, और जो विज्ञान है विज्ञ वो विशिष्ट ज्ञान की ओर इंगित करता है। बस इतना ही तो अंतर है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात, ज्ञान दर्शन की ओर ले जाता है और विज्ञान प्रदर्शन की ओर ले जाता है। ज्ञान से हम अंदर झांक सकते हैं, विज्ञान हमें बाहर के संबंधों, बाहर के ताने बाने को जानने का अवसर प्रदान कर सकता है। और इसलिए एक लंबे समय तक विज्ञान के कह सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क पर इतना बुरी तरह से, मैं विज्ञान का विरोध नहीं कर रहा, कहीं गलतफहमी बिल्कुल ना रखें, विज्ञान ज्ञान का ही तो हिस्सा है, उसी दर्शन का हिस्सा है, इसलिए उसका विरोध नहीं है। लेकिन किसी एक पक्ष मात्र से शासित हो जाना, मजेदार बात यह रही कि हम राजनीति विज्ञान को सिद्ध करने लगे कि राजनीति कला है या विज्ञान है, इतिहास विज्ञान है या कला है, और हर विषय को विज्ञान बनाने पर भूल गए। जबकि मैं यहां फिर से एक बात कहना चाहूंगा, जो 64 कलाओं की बात कादम्बरी लिखी जाती है, बाणभट्ट लिखते हैं, वो भी हमें समझने की आवश्यकता है। वहां विज्ञान जो है और या कला जो है वह उस रूप में नहीं प्रयुक्त है जिस रूप में हम सब ने अवधारित कर लिया है। लिबरल आर्ट्स, जहां सामान्य विषय के साथ साथ विज्ञान उस लिबरल आर्ट का हिस्सा है, यानी वह सब कुछ जो हमें अपनी जिंदगी को जीने के लिए आवश्यक है, वह सब कौशल जो हमें एक कुशल व्यक्ति बनाने के लिए आवश्यक है, वह सब ज्ञान। और इसीलिए जब 14 कलाओं की बात और कई बार 14 से 18 कलाओं की बात और विद्याओं की बात की जाती है, तो हमें समझना चाहिए कि इतना डाइवर्सिफाइड करिकुलम का हमारा इतिहास रहा है। मैं यह बात इसलिए और इंगित करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है जो हम एनईपी 2020 ने कह दिया है और हम इसलिए शुरू कर देना चाहते हैं। हमारे यहाँ की ज्ञान परंपरा में, विचारधारा में यह रहा है, सिर्फ अंतर इतना है कि हमें समझने की आवश्यकता है वह किस रूप में रहा है। और मैं यहाँ एक बात अभी और इंगित करना चाहूंगा कि जब हम 64 कलाओं की बात करते हैं, वैसे मैं और बता दूं आपको, 500 से अधिक कलाओं का उल्लेख मिलता है। 500 से अधिक, 64 मुख्य कलाओं की बात की जाती है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो कलाएं हैं, आवश्यक नहीं कि जो उन कलाओं की चर्चा की गई हम आज उन्हीं कलाओं की बात करें। आज की जो आवश्यक कलाएं हैं उनकी बात करते हैं ना। उन 64 कलाओं में हम आज की आवश्यकता क्या है हम सब जानते हैं। जैसे कि मैडम कह रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी आज घर घर में, मोबाइल में लोगों ने खोलना शुरू कर दिया है, ये मानना पड़ेगा। रोबोटिक्स आज कक्षाओं में घुस गया है,
आपको पता है जो पहला रोबोट है टर्टल, और उसके बाद अब हमने अपने यहाँ इंडिया में भी एक रोबोट बनाया है, इसका नाम ईगल। अपने यहाँ हैदराबाद में कक्षा में रोबोट आ चुका है। 30 भाषाओं में, कितनी? 30 भाषाओं में एक साथ बच्चों को वह रोबोट पढ़ा रहा है। ये कहीं और नहीं, हैदराबाद शहर में आपके यहाँ है। और उसी संस्था ने जो कुछ सरकारी स्कूल हैं उनको भी ले लिया है। वो धीरे धीरे, मेरे कहने का आशय यह है कि रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये जो टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट हैं। एक समय ऐसा था जब मैंने गलती से अमेज़न पर किंडल खरीद लिया और मुझे ये पता ही नहीं था। मुझे लगा कि जैसे कोई किताबें होंगी, आ जाएंगी हमारे पास। किंडल एडिशन खरीद लिया, बाद में पता चला कि किंडल क्या होता है। आज ये है कौशल हर व्यक्ति की आवश्यकता है। उन 64 कलाओं की नहीं, 64 से 4 और जोड़िए, 68, 70, 72, 80, ये कलाएं आपको तय करनी पड़ेगी कि आज के हमारे समाज की क्या आवश्यकता है। हमारे इनका कहने का आशय कतार ये नहीं है कि हम उन्हीं पुरानी कलाओं की बात करें या उनको उपेक्षित कर दें। समाज को तय करना पड़ेगा, शिक्षा संस्थाओं को तय करना पड़ेगा कि किस प्रकार के करिकुलम की आवश्यकता है। विज्ञान और विज्ञान की अतिशयता या विज्ञान की उपेक्षा दोनों की बात नहीं है, हमें दोनों के साथ चलना है। और इसीलिए जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं ना, डिसिप्लिन अपने आप में एक बात इंगित करता है, क्या? डिस्क्रीट बॉडी ऑफ नॉलेज, डिस्क्रीट बॉडी ऑफ नॉलेज, डिस्क्रीट वे ऑफ थिंकिंग, जहां ब्रांच ऑफ फिलोसफी, ब्रांच ऑफ नॉलेज, ब्रांच ऑफ आइडिया। जैसे ही ब्रांच कहते हैं ना, वैसे ही वृक्ष अपने आप में आता है। जब कोई ब्रांच है तो वृक्ष तो पक्का होगा। जैसे ही आधा कहते हैं वैसे पूर्ण निश्चित रूप से होगा। तो हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि ये अंतर अनुशासनात्मकता या बहु अनुशासनात्मकता यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आ रही है, यह नैसर्गिक है। हमने अवरुद्ध किया गलती मस्ती से थी। हमने क्या किया? बाउंड्रीज बना दी। बोले कैसा है कि आप किस विषय को, केमिस्ट्री को, इस कमरे में जाओ, और आप फिजिक्स के हो, इस कमरे में जाओ। युval नोआ हरारी अपनी जो पुस्तक लिखता है सैपियंस, मैं तो अक्सर हमेशा कहता हूं अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को कि जरूर पढ़िए, और इतिहास पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन उसको जरूर पढ़िए पुस्तक। वो बताता है कि कैसे हमारे विश्व इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई 14 अरब वर्ष पहले, कैसे एक बिग बैंग की वजह से जो एटम हुए, सब अलग हुए, ऊर्जा, टाइम, स्पेस, इनका आविर्भाव होता है, और कैसे ही इन्हीं अणुओं के संबंध को हम फिजिक्स के रूप में जानते हैं, और उनके जो रासायनिकी तत्वों का अध्ययन है उसको केमिस्ट्री के रूप में जानते हैं, और उन्हीं अणुओं का जो विकास हुआ उसको बायोलॉजी के रूप में जानते हैं। कैसे ये जो विषय है ये कहीं और से नहीं आए, ये हमारे उद्भव से आए, ये हमारे विकास से आए, इवोल्यूशन से आए। तो ये जो हमें जो मल्टी डिसिप्लिनरिटी है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एनईपी कह रही है अच्छा चलो भाई काम करते हैं, 2 विषयों को जोड़ करके एक नया विषय बनाते हैं। ऐसा कई बार हमें लग रहा है कि जैसे हम टेलर बन गए हैं कि चलते हैं, काम करते हैं, रेमंड से कपड़ा लाते हैं और शर्ट का और पैंट का और दोनों जोड़ करके एक नई चीज बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करने की आवश्यकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। ये इवोल्यूशनरी है, ये विकासात्मक है। बस हमें उस विकास को समझने की आवश्यकता, उस विकास की दिशा को समझने की आवश्यकता है। और जब ये हम बात कहते हैं कि ये विकास, तो निश्चित रूप से चाहे वो सामाजिक विषय हो, युval नोआ हरारी एक बात और कहता है जो मैं इसलिए क्लिक करना चाह रहा हूं कि आज अगर करिकुलम को बदलना है, हमें उन मूल बातों की ओर देखना पड़ेगा। कहता है कि जो हम सेपियंस हैं और जो नॉन सेपियंस हैं, हम दो बचे। सेपियंस बचे क्यों और हम उनसे जीते क्यों? जबकि वो कई बार मजबूत थे हमसे ज्यादा, और हार, शुरुआत में हम सेपियंस हार ही रहे थे उनसे। एक चीज ऐसी थी, वो क्या थी? फ्लेक्सिबिलिटी, नमनीयता। और उसी नमनीयता ने हमें जीवित रहने, सरवाइव करने में मदद की। फ्लेक्सिबिलिटी जो बात कह रहे हैं हम विषयों की, उसका भी बड़ा गहरा संबंध है। अगर हमने विषयों की फ्लेक्सिबिलिटी अपने साथ नहीं रखी तो हम निश्चित रूप से उन प्रजातियों में होंगे जो बड़ी जल्दी विलुप्त हो जाएंगी, ज्ञान के स्तर पर कम से कम। ये जो फ्रेगमेंटेशन है स्वाभाविक नहीं है। आगे वो एक बात कहता है कि जो मनुष्य है उसके पास क्या है? कल्पना।
भाई आप उदाहरण देता है, कहता है कि जैसे बंदर है, बंदरों या चींटियां हैं, हम उन पर शासित क्यों कर रहे हैं? आज चींटियों को हम दाना देते हैं, आटा डालते हैं, और बंदरों को चिड़ियाघर में बंद करके रखते हैं या पूरे तालाब में और कोफ्ता का प्रयोग करते हैं उनके साथ। तो ये ऐसा क्यों कर पाए? सिर्फ एक चीज ऐसी थी, और वह थी कि हमने कल्पनाशीलता, जो कहता है कि कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहता है हमारे पास कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, ये जो संज्ञानात्मक क्रांति है, इसकी वजह से हमने ये परिवर्तन कर पाने में, और यही वो शक्ति है जिसकी वजह से हम संवाद कर पाते हैं, डायलॉग कर पाते हैं, डिस्कोर्स कर पाते हैं, जो वो नहीं कर पाते उस रूप में, उस फ्लेक्सिबल रूप में। उनकी भी भाषाएं हैं, तोते की भाषा है, चिड़िया की भी भाषा है, लेकिन वो उतने संयोजन नहीं बना पाती जितने संयोजन हम आप बना पाते हैं उतने निश्चित प्रतीकों के साथ। ये जो हमारी विशिष्ट क्षमता है, यह कक्षाओं में नर्चर की जानी चाहिए। और वो कब होगी? जब वार्तालाप का अवसर देंगे। हमने क्या किया, इतना हैवी करिकुलम बनाया कि बच्चा कक्षा में तो छोड़िए, कक्षा के बाहर भी बात नहीं कर सकता, घर जाकर तो होमवर्क लेके जाता है, टीचर के दिए हुए कक्षा के सवाल लेके जाता है। आज कक्षाओं को उनसे मुक्त करने की आवश्यकता है। मैं जब अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जब मैं वापस आया सिक्किम विश्वविद्यालय से, तो हमें जब अवसर मिला अपने करिकुलम को बदलने का, तो हम लोगों ने पहला काम किया था, पहला काम करना है, देखना ही नहीं, कोर्स को आधा करना है। क्यों? ऐसा लगता है जब हम करिकुलम डिजाइन कर लेते हैं, सर्वर कमेटी बैठती है, ऐसा लगता है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, नहीं इसको क्यों छोड़ दो, ये भी पढ़ा दो, अरे ये भी छोड़ने वाली चीज नहीं है, अरे कुछ तो छोड़ दीजिए बच्चों को विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए, सोचने के लिए और वार्तालाप करने का अवसर प्रदान करने के लिए। हमारी जो शक्ति, हम सेपियंस की जो शक्ति इतने लंबे समय से हमको जीवित रखकर यहाँ तक ले आई है, और आज हम किस रिवोल्यूशन में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात मैं तो कहता हूँ, ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी रिवोल्यूशन में हम आ चुके हैं, आईसीटी रिवोल्यूशन में आ चुके हैं। यहां तक हमारी जिन चीजों ने हमें पहुंचाया है, उसको कक्षाओं से मत हटाइए, उन्हें कक्षाओं में रखिए, उन्हें कक्षाओं में प्रमोट करिए। निश्चित रूप से हमारी जो पाठ्यचर्या होगी वह अपने आप नैसर्गिक होगी, प्राकृतिक होगी, और वह हमारे विद्यार्थियों में भी जॉय पैदा करेगी, उत्साह पैदा करेगी, और वह निश्चित रूप से रचनात्मकता को बढ़ावा देगी, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देगी। हमें क्रिएटिविटी के लिए किसी लैब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रिएटिविटी तो ऐसे ही नर्चर होती है। और निश्चित रूप से यह जो समग्रता की बात है, होलिस्टिक एजुकेशन की बात है, यह हमारी भारतीय परंपरा का अंग है, भारतीय परंपरा संस्कृति का अंग है। इसे कहीं से भी अलग होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम होलिस्टिक एजुकेशन, यानी कहती है होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। जब हम लोग होलिस्टिक की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्, ये हम सब याद करते करते, बोलते बोलते, ये मंत्र नहीं है, यह केवल विचार नहीं है, यह क्या है? यह एक फिलॉसफी है जीवन की, कि हम पूर्ण हैं और अंश होकर के भी उसी पूर्ण के अंश हैं। इसलिए हमें हर चीज को पूर्णता के साथ समझने की आवश्यकता है। इसलिए एजुकेशन जब तक होलिस्टिक नहीं होगी, तब तक हम निश्चित रूप से शिक्षा के उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यह बात जो कादम्बरी में लिखी है बाणभट्ट ने, यह केवल नहीं है, याज्ञवल्क्य की स्मृति में 18 कलाओं की बात मिलती है। पुराणों में इसी तरह से शुक्राचार्य ने नीति सार ग्रंथ के 4थे अध्याय के 3रे प्रकरण में 64 मुख्य कलाओं की चर्चा की है। और कला का लक्षण बताते हुए एक बात है जो जरूर चर्चा करना चाहूंगा अपने साथियों से। कहते हैं कि शक्तो मूको कपि यत् कर्तुम कला संज्ञम तु तत्स्मृतम, जिसे एक मूक गूंगा व्यक्ति भी जो वर्णोच्चारण नहीं कर सकता वह भी समझ सके, वह भी प्रयोग कर सके, वही कला है। यानी केवल बौद्धिक आयास नहीं, बल्कि जीवन के जीने की जो भी ज्ञान है, जो भी विचार है, वह सब कला है। और इस तरह से कह सकते हैं कि ये ऑल ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन एंडिवर्स, ऑल ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन काइंड, मनुष्य जात की जो भी, मनुष्य प्रजाति की जो भी हमारी प्रयास है, क्रिएटिविटी है, जो हमारे विचार हैं, वह सब कलाएं हैं। और इसलिए इनका समावेशन आवश्यक है। और यह बात जब मैं भी कह रहा था कि मेघालय से पूर्व तक
तो मैं आचार्य चाणक्य के शब्दों के साथ इस बात को और स्पष्ट करना चाहूंगा, यह केवल वेद पुराण उपनिषद या पुरानी बातें नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया यस्तैते षड्गुणस्तस्य नास्यादमति वर्तते। विज्ञान तर्क शक्ति कला स्मृति तत्परता कार्यशीलता यानी उद्यमिता, ये 6 गुण जिनके पास हैं उस व्यक्ति का कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता, वह हमेशा प्रगति करेगा, वह हमेशा आगे बढ़ेगा। ये जो डाइवर्सिफाइड करिकुलम है, ये जो विभेदीकृत जो पाठ्यचर्या है, वह हमारी संस्कृति का अंग कब तक रहा है? आचार्य चाणक्य तक। उसके बाद जब हमने कहीं न कहीं अपनी शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन आए, उनके कारण हमने अपनी शिक्षा पर जो एक अलग आवरण आरोपित किया है, हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि हमें उन पर विचार करने की आवश्यकता है। एक बात और कहना चाहूंगा, हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह कॉन्फ्लुएंस की रही है, संगम की रही है। इसलिए मल्टीडिसिप्लिनरिटी या होलिस्टिक एजुकेशन हमारी संस्कृति का अंग है। हम सब जानते हैं प्रयाग में कुंभ लगता है, उज्जैन में कुंभ लगता है। कुंभ का मतलब धार्मिक सम्मेलन नहीं है, वो ठीक है, बाद में उसको धार्मिक स्वरूप दे दिया गया। जो कॉन्फ्लुएंस है, जो कुंभ है, वो हमारी संस्कृति का अंग है। आज कॉन्फ्लुएंस ऑफ माइंड की जरूरत है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ सब्जेक्ट्स की जरूरत है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिसिप्लिन की जरूरत है, और इसलिए विषयों के संगम की, विषयों के मिलन की, इनके फ्यूजन की आवश्यकता है। और मैं कहना चाहूंगा कि हमें फिर समझना होगा कि अपनी आवश्यकता क्या है। हम इन आवश्यकताओं को देखते हुए किस तरह से हम अपने आर्ट्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज इन सबको एकीकृत करते हुए अपने करिकुलम में सुधार ला सकते हैं। निश्चित रूप से गुणात्मक रूप से हम कह सकते हैं हमने सिलेबस में मल्टीडिसिप्लिनरी ला दी है, इंटरडिसिप्लिनरी ला दी है। क्या विषयों के साथ हमने उस तरह का न्याय किया है? मैं एक उदाहरण देते हुए बात करना चाहूंगा। सीबीसीएस का पाठ्यक्रम हम लोगों ने लागू कर दिया, ये कहते हुए कि हमने मल्टीडिसिप्लिनरिटी को बढ़ावा दिया। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? एक केमिस्ट्री का बच्चा एजुकेशन का सब्जेक्ट लेता है और हमारे यहाँ एजुकेशन में आता है, या यूं कहें कि एजुकेशन का बच्चा केमिस्ट्री में जाता है पढ़ने के लिए। क्या कोई भी एक प्रश्न पत्र जो आपने वहां लागू कर रखा है, क्या वो वहां जा करके पढ़ करके उससे कुछ फायदा उठा पाएगा? हमें अगर मल्टीडिसिप्लिनरिटी को बढ़ावा देना है, सीबीसीएस को सही ढंग से लागू करना है, तो हमें अपने करिकुलम को डिजाइन इस तरह से करना पड़ेगा कि जो दूसरे विषय का विद्यार्थी आए वह उस विषय की आत्मा को समझ करके उसके प्रति, उसके अंदर सम्मान, उसके प्रति एक तरह से कह लें समझ विकसित कर सके, अंडरस्टैंडिंग विकसित कर सके। आज हालात क्या है? सीबीसीएस के नाम पर हमने क्या किया है कि हर विभाग अपने पेपर फ्लोट किए हुए। बच्चा क्या करता है, अभी तक यहाँ पढ़ता था, कल जाके वहां पढ़ने लगा, लेकिन वह जो विषय के उस अनुशासन की समझ की बात थी। और इसीलिए हमारे यहाँ बीएड में एनसीटी ने 2014 में यह बात शुरू की थी, लेकिन वह आत्मा में नहीं उतर पाया, वही हुआ। और इसलिए मैं यह बात इंगित करना चाहता हूँ, एनईपी इंप्लीमेंट हो जाएगी कागजों पर, लेकिन वह आत्मा में नहीं उतर पाएगी अगर हमने इन बातों का ध्यान नहीं रखा। स्थिति यह है, एक पेपर हुआ करता है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, और एक प्रश्न पत्र होता है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन। मैं सिक्किम विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक हो रही थी, तो एक एक्सपर्ट आए और उन्होंने पेन ड्राइव दिया, बोले इसको ले लीजिए और अपना सिलेबस डिजाइन करिए। देखा, सारे विषयों के थोड़े थोड़े निचोड़ ला करके रख दिए गए। क्या यही अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन है? और आज भी अगर देखिए आप, तो विश्वविद्यालयों के जो पाठ्यक्रम है, जिस मंशा के साथ ये शुरू किया गया था कि कैसे विषयों के, कैसे अनुशासनों की समझ विकसित की जाए विद्यार्थियों के अंदर, वह भाव नहीं रह पाया। क्यों? क्योंकि हमने डिसिप्लिन की ओरिजिन, डिसिप्लिन की हिस्ट्री, डिसिप्लिन का जो विकास, डिसिप्लिन के जो संबंध है, उसको तो हमने नरेट किया ही नहीं। हमने तो अपने विषय की गूढ़तम बातों को प्रस्तुत कर दिया, और ऐसा लगा कि जैसे लगता है हर व्यक्ति केमिस्ट्री पढ़ लेगा, हर व्यक्ति रासायनिकी नहीं पढ़ सकता और पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन अगर वह अन्य विषयों की समझ विकसित करता है, तो हमें अपने सीबीसीएस पाठ्यक्रमों में इस तरह के सुधार की आवश्यकता है, जिससे कि यह मल्टीडिसिप्लिनरिटी कहीं न कहीं हमारी कक्षाओं में उतर सके। मुझे पता है समय की सीमा है, हमारे अन्य
जो वक्ता है उनको भी बैठक में जाना है, इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक बात कह करके यही बात समाप्त करता हूं कि हमें लेटर से ज्यादा स्पिरिट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेटर्स में तो उसी दिन इंप्लीमेंट हो गई थी जिस दिन डिक्लेयर हुई, उसके बाद तो लेटर्स में इंप्लीमेंट हो ही गई थी। स्पिरिट में इंप्लीमेंट करना बहुत बड़ी चुनौती है। और किसी विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय में मैं बात कर रहा हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं ये मेरा अल्मा मैटर है, मैं यहीं का विद्यार्थी रहा, इसलिए मैं इस प्राउड से ये बात कह रहा हूं और यह इंगित भी कर रहा हूं। इसी विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में चीफ आर्किटेक्ट इस एनईपी के आए थे, कस्तूरी रंगन जी। उन्होंने एक बात कही थी, अभी 10 वर्ष और लगेंगे इस एनईपी को इंप्लीमेंट होने में। उनकी उस बात को ध्यान में रखते हुए एनईपी की मूल भावना को समझने की आवश्यकता है। जब तक हम उस मूल भावना को नहीं समझेंगे, लेटर्स में तो लागू हो जाएगी, स्पिरिट में लागू होने में समय लगेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं जो हमारे बाकी के 2 पैनलिस्ट बचे हुए हैं उनसे निवेदन करूंगी कि एक एक करके मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। डॉक्टर शुभ्रा खटारा मैम बरेली से आई हैं स्पेशली फॉर दिस पर्पस। सो जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट एनईपी 2020 हैज अ फोकस ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन, एंड एनईपी also keeps teachers and faculty at the heart of the learning process. Their recruitment, continuous professional development, positive working environments and service conditions have always been taken care of. So now I invite Dr. Shubhra Khatara to please throw some light on these aspects. Over to you, ma'am. नमस्कार। आज यहाँ डॉक्टर शांभवी मिश्रा उनके सौजन्य से मुझे इस ऑगस्ट गैदरिंग में और इतने सम्मानित मंच के साथ बैठने का ये अवसर मिला है, और साथ ही साथ बहुत खूबसूरती से इस वजह से ये हमारी गोष्ठी सेमिनार कर रही है। मैं बहुत बहुत साधुवाद, बधाई, शुभकामनाएं डॉक्टर शांभवी मिश्रा को देती हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स लखनऊ यूनिवर्सिटी बधाई का पात्र है कि उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया कि मल्टी डिसिप्लिनरी मंच पैनल एक हमारे सामने प्रस्तुत किया, और हम लोग आज यहाँ एनईपी 2020 को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग भी अपने अपने विचारों के साथ यहाँ प्रस्तुत हैं, और निश्चित ही बात है कि सभी के मन में इस एनईपी को लेकर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एज ए स्टैटिस्टिशियन मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगी कि इन गॉड आई बिलीव बट ऑल अदर्स मस्ट ब्रिंग डाटा। अभी एनईपी का जो रियल इम्पैक्ट है उसको हम किस तरह से समझेंगे, किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, उसमें अभी थोड़ा वक्त है कि क्या इसका इम्पैक्ट हो रहा है। कुछ एज ए स्टैटिस्टिशियन मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि एक हमारा माइंड सेट है वो मॉडलिंग का है, और हम ये सोचते हैं कि आज तो हमारे सामने वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो कल किस तरह का शेप लेगी। जो हमारे सामने फिगर्स आ रही हैं उनके माध्यम से इसको इमेजिन कर सकते हैं कि आगे आने वाला कल कैसा होगा, लेकिन एग्जैक्ट पिक्चर अभी आनी बाकी है। फिलहाल हम बात करते हैं एनईपी के अंतर्मन की। एनईपी हमारी किन मंतव्यों के साथ इसको लाया गया है और किस तरह से इसका डेवलपमेंट हो रहा है। इस बात को शुरू करने से पहले बहुत सारी बातें क्योंकि हो चुकी हैं, इसलिए आइंदे साउंड रिलेटेड मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि बहुत हमारे लर्नेड फैकल्टी यहाँ पे है जिन्होंने अभी 3 लोगों ने आपने 3 लोगों से बात सुनी, उनके विचार थे कि उसके बाद में अगर कुछ भी बोलूँ तो ऐसा लगता है जैसे वो अभी बोल चुके हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन फिर मैं कोशिश करूँगी कुछ अपना इनपुट आपको मैं सोचती हूँ और सीधे सीधे संवाद करना चाहती हूँ। मैं यहाँ जो बैठे हैं हमारी सभी वैज्ञानिक वर्ग है और कला संकाय से भी होंगे, विज्ञान संकाय से भी होंगे, सभी तरह के छात्र हैं और टीचर्स भी हैं और हमारी सारी लर्नेड फैकल्टी है, तो उनके साथ सीधे सीधे संवाद करना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि आप मन से इस संवाद से जुड़े, खाली ये एक तरफा संवाद ना रह जाए। ये वाकई में पैनल डिस्कशन है, इस शुड बी ये पार्ट मुझे भी आपकी भी बाइट सुनने की मैं तो सोच रही हूँ कितना करते हैं। हमारे बुजुर्ग और लर्नेड वैज्ञानिक राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर मुझे किसी काम को पूरा करने के लिए 4 घंटे दिए जाएंगे तो मैं उसमें 3 घंटे अपने औजारों को दुरुस्त करने में लगाऊंगी। दिस इज द जिस्ट ऑफ इनोवेशन, दिस इज द जिस्ट ऑफ इनोवेशन। इसको अगर हमें किसी काम को करना है
उसको करने के लिए हमें अपना स्किल, अपना इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना। तो अभी तक का हमारा एजुकेशन सिनेरियो था, कहना चाहिए कि पिछले काफ़ी सालों से, तो एज टीचर भी मैं फील करती हूँ और एज स्टूडेंट भी सब फील करते हैं कि हमारा जो तरीका था पठन पाठन का वो बहुत वास्ट था। बहुत पहले एक सिलेबस है, बहुत सारे उसमें फंडामेंटल्स हैं, उसमें भी सेट क्वेश्चंस हैं, और फिर उनको हम सिलेबस को पढ़ते थे, एक बार नहीं 4 बार पढ़ते थे उस सिलेबस को। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स की बात करें तो अगर उन्होंने डिरिवेटिव थ्योरम पढ़ी है तो कम से कम रातों में जाके 50 सवाल किए हैं, और उसके बाद थ्योरम होंगे, टिप्स पे आई है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते थे। लेकिन फिर होता क्या था कि कुछ किताबें हैं गोरख प्रसाद की और इस तरह से महत्वपूर्ण किताबें हैं, और हम उनके क्वेश्चंस को करते थे, उन क्वेश्चंस का जवाब देते थे, आधे क्वेश्चन हमें याद हो जाते थे, और जब वो एग्जाम में आते थे तो पॉइंट हमें पेपर मिलता था, हमें मालूम था कि 10 में से 5 क्वेश्चन हमें करने हैं और हम 4.5 क्वेश्चन करने की कैपेसिटी में हैं, और बाकी का आधा क्वेश्चन हमें ढूंढना है कि हम कहाँ से करें कि किसी तरह से हम करें। और हमारा जो मेन फोकस था वो ये था कि हमें 50 में से कितने नंबर मिलेंगे। बहुत अच्छी बात है, उसकी कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी अप्रोच है, बहुत अच्छा हमारा एजुकेशन सिस्टम हमेशा रहा है। हमने जो साइंटिस्ट प्रोड्यूस किए हैं वो हमारे देश में भले ना दिखी, लेकिन विदेशों में वो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और इसके बाद में दूसरा सिनेरियो देखिए आप, इन सिलेबस के साथ में जो हमारे घरों में स्थिति है, जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। कितने पेरेंट्स ऐसा कहते थे कि तुम बड़े होके नोबेल पुरस्कार लो, कितने पेरेंट्स ने कहा कि तुम बड़े होके अच्छा टीचर बनो। क्लास 8 आते आते माँ बाप के दिल की धड़कन ऐसे हो जाती थी कि जैसे कि बस ICU में जाने की भी जरूरत है, अगर बच्चे के 9th में उनके मन का सब्जेक्ट नहीं हुआ। इस स्थिति में क्या किया जाए जहाँ आप सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर को प्रोफेशन मानते हैं? और आज हम जिस स्थिति में खड़े हुए हैं ग्लोबली, आज हमें कल का नहीं पता कि कब कहाँ भूकंप आ जाएगा और पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा देश ध्वस्त हो जाएगा। ये सब किस चीज़ का नतीजा है? ये सब बिना सोचे समझे शिक्षा नीति का नतीजा है, जहाँ भी शिक्षा नीति सिर्फ और सिर्फ एक विदेश में नौकरी प्राप्त करने के लिए, अगर बच्चे ने किसी तरह से बीटेक कर लिया, IIT ग्रेजुएट हो गया, तो क्या नहीं किया समाज में, ठीक है, अच्छी बात है, वो भी एक अच्छा सिनेरियो है कि आपके बच्चा देश के प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस में आता है। लेकिन उसके बाद में नतीजा इतनी सारी कितनी PhD थीसिस हो गई होंगी 47 के बाद से आज हिंदुस्तान में। आप इमेजिन कीजिए, एवरी फील्ड, साइंस, मैथमेटिक्स, हर साल लाखों लाख PhD स्टूडेंट्स निकलते हैं, and no Nobel Prize, no scientific innovation, no thoughts to give to the world। क्या है ये जो लैक है, ये सभी को समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी शिक्षा नीति या हमारी शिक्षा प्रणाली हमेशा से ऐसी थी, जैसे कि अभी बात की मैं इतना कोट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी इतना जरूर कहूँगी कि एक 5 पांडव थे और उनके एक गुरु थे द्रोणाचार्य, और उन्होंने 5 पांडवों में अलग अलग कलाएं देखी। उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर का धर्म में रुचि है, तो उन्हें शास्त्रों के अध्ययन में लगाया। उन्होंने देखा कि भीम किस स्पोर्ट को ले सकते हैं, स्पोर्ट के लिए युद्ध कला के लीजिए, और उन्होंने उसको इस तरह का दिया। अर्जुन को उन्होंने धनुर्विद्या देने से पहले 5 और 100 कौरवों का टेस्ट लिया था कि तुम्हें क्या दिख रहा है, और जब उसमें से एक ने कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है, तब उन्होंने उनको धनुर्विद्या दिया। उन्होंने ऐसे नहीं किया था कि नहीं ये मेरा फेवरेट चाइल्ड है बिकॉज ऑफ हिज नेचर, बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी, नथिंग लाइक दैट। उनका एक रिकरिंग टेस्टिंग प्रोसीजर था, वो डे टू डे। और हम नाम जानते हैं द्रोणाचार्य का, लेकिन जब हम बात करते हैं हम समझ सकते हैं कि उनके पास भी एक गुरुकुल रहा होगा। गुरुकुल मतलब नॉट ओनली वन टीचर बट अ नंबर ऑफ टीचर्स, और ये उनकी कहीं मीटिंग हुई होगी, कहीं उनकी सभाएं हुई होगी, और इसमें उन्होंने डिसाइड किया होगा कि ये जो है राजकुमार यहाँ ये भी बात जानने की जरूरत है कि दे बिलोंग्स टू द रिचेस्ट क्लास ऑफ द सोसाइटी, और उनको हमने एक साधारण गुरुकुल में रखा। एक साधारण गुरु ने उनकी परीक्षा ली, और गुरु ने ये तय किया कि ये कला क्या काम करेगा, और छात्र उसको मानता था। और इसीलिए चाणक्य ने कहा कि मैं शिक्षक हूँ, मैं राष्ट्र निर्माता हूँ,
विध्वंस और निर्माण में रिपोर्ट डेवलप होगी। अब इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि क्या टीचर का रोल है। टीचर का रोल है एक अर्जुन बनाना, टीचर का रोल है युधिष्ठिर को बाकी से अलग करना। इन चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो हमें अपनी भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए हमें अपने ज्ञान के, अपने प्रोसीजर्स की गर्व है और उस गर्व को आत्मसात कर देता है। ये एक मौका है कि हम NPTEL को रिसर्च और इनोवेशन इन चीज़ों को जब हम बात करते हैं, मैं इन टॉपिक्स के ऊपर अपना विचार कहना चाहती हूँ। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है रिसर्च अनुसंधान, ये व्यक्ति की मस्तिष्क, कार्यक्षमता, उसकी डेडिकेशन, इन सब चीज़ों का एक समावेशित निचोड़। ये एक चीज़ नहीं है, रिसर्च ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अभी तक का जो रिसर्च का सिनेरियो था उसमें क्या था कि हम BSc के अलग अलग स्ट्रीम्स में पढ़ रहे थे, तो फिर हम डिसाइड करते BSc तक तो हमें पता ही नहीं होता है। अगर हमें इंजीनियरिंग में चला गया छात्र तो उसे पता है उसे क्या करना है, लेकिन ग्रेजुएट स्टूडेंट जब एंटर कर रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए तो उसे कुछ नहीं पता होता कि उसे क्या करना है। तो 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा था अपनी रुचि से और बाकी सब्जेक्ट से कट जाता। अब इसमें जब हम रिसर्च की बात करते हैं कि हमारे यहाँ क्वालिटी रिसर्च का प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उसमें यही बात है कि हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली में एक डेफिनेट सिलेबस है, उसको आपको याद करना है, कुछ टारगेट क्वेश्चंस हैं उनको करना है और उसके बाद में एक एग्जामिनेशन सिस्टम से पास होकर आपको निकल जाना है। उसके बाद जिस सब्जेक्ट में आपको मौका मिल जाए उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेना है। वो सब्जेक्ट हो सकता है बहुत आपकी रुचि का ना हो सकता है वो आपके माता पिता की रुचि का हो सकता है कि किसी और आपके रिश्तेदार ने क्योंकि उस सब्जेक्ट में कुछ अच्छा करके पाया है इसलिए आपको उस सब्जेक्ट को लेना पड़ा। तो इस तरह के मानकों के साथ शिक्षा चल रही थी। अभी तक बच्चा अपनी रुचि जानता ही नहीं है क्योंकि उसने 2 साल या 3 साल जब ग्रेजुएशन किया तो एक पैटर्न का फॉलो किया, उस पर बेस्ड 5 चैप्टर उसने तैयार किए, उसे उसकी रुचि का कुछ नहीं करना और अगर उसकी रुचि कहीं है तो वो बहुत मुश्किल से अपने लिए समय निकाल पाता है। फिर यहाँ एक और बात करती हूँ कि आज हम लोग NEP डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब हमने कार्यक्रम का आरम्भ किया हमने कुलदीप से उसके बाद हमने सरस्वती वंदना की। क्यों ऐसा है? इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे बहुत वैज्ञानिक रीज़न है कि जब आप संगीत के चरण में जाते हैं तो आप अपने माइंड को एकाग्र कर लेते हैं। आज में कितने लोग असाध्य लोग ऐसे हैं जो मानसिक रोग हैं या न्यूरो रोग हैं जो कि मात्र कुछ श्लोकों के श्रवण से ठीक हो रहे हैं। तो ये म्यूजिक को हमें एक कार्यक्रम को शुरू करने से पहले उससे हमें एक अंदर से एक बाकी विचारों को स्थिर करके हम एक तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हम उनको अपने आप को कैसा एक पॉइंट पे जाकर केंद्रित करते हैं और फिर उसके बाद में हम उसको करते हैं। I request Professor Archana Srivastava to please present a memento and felicitate Dr. Shubhra Katara.
Rajni Ranjan Singh sir. I now invite Dr. Praveen Mishra to felicitate Dr. Subhash Mishra and to also propose the vote of thanks for this timing session. एक चीज का डिस्कशन किया कि एक हमारी गाँव की संरचना होगी और उस संरचना में हर स्किल से रिलेटेड, चाहे वो एक कुम्हार हो, चाहे कोई शिक्षाविद हो, एक नाई हो, या बर्तन बनाने के लिए जो होते हैं आपके और तमाम प्रकार की, तो एक गांव में एक चलती फिरती अर्थव्यवस्था पहले से होती थी और उस अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक नीति होती थी जिसकी शिक्षा दी जाती थी, और वो शिक्षा जो चलती थी वो जिसको कहते हैं कि एक परंपरा होती थी कि जो पहले से लोग काम कर रहे होते थे उसी को कंटिन्यू करते थे। उसके बाद अनेक प्रकार की शिक्षा नीति इम्प्लीमेंटेशन हुआ विभिन्न सरकारों के द्वारा आज़ादी के बाद। तो सोचने की ज़रूरत ये है कि क्या वो जो शिक्षा नीतियाँ थी वो बेहतर परफॉर्म कर पाई पिछली कंपैरिजन में, या जो व्यवस्थाएं हमारी जो गुरुकुल व्यवस्था थी, जो ट्रेडिशनल जो एजुकेशन मिलती थी, उसके पिताजी काम करते थे या उसके दादा परदादा काम करते थे, उसके माध्यम से, तो इन सब चीज़ों को इसका मेजरमेंट होगा। शाम्भवी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो अभी करने की चर्चा की थी कि उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा और साथ में क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो हमारे सेक्रेटरी सर थे नोटिस, तो उन्होंने इस चीज़ को एम्फसाइज किया था कि उसका एनालिसिस जो है अभी क्वांटिटी डेटा आना बाकी है, मोस्टली वी आर डिस्कसिंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस। So hopefully we will do that, and the results of this National Education Policy NEP 2020 will be fruitful, बहुत अच्छे होंगे। डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी का मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कही एक सेंटेंस में कि लेटर एंड स्पिरिट दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इम्प्लीमेंटेशन लेटर में हो रहा है कि स्पिरिट में हो रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज को मैं अक्सर नोटिस करता हूँ, मैं बीइंग द स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आई एम नॉट एजुकेशनिस्ट, जो पैनल में है, जो इन लोगों के विचार हैं और उस लेवल पर मेरी भावनाएं हो भी नहीं सकती हैं, लेकिन एक चीज को मैं अक्सर नोटिस करता हूँ कि ज़्यादातर जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं, जो हमारी चर्चाएं हैं, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एज अ पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन, हम सभी उच्च शिक्षा से संबंधित हैं, तो हमारा जो मेन एम्फेसिस है, जो फोकस है, जो डिस्कशन है, दैट इज ओनली
on higher education. एक बहुत छोटी सी बात मैं अक्सर नोटिस करता हूँ कि जब मेरे बच्चे हैं छोटे, उनकी एक आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, जिसके लिए आपको इच्छा हो या ना हो जाना पड़ता है। आप सभी लोग जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। तो क्लास 4 में बच्चा है और मैं जाता हूँ, तो मेरा हम सभी लोग ज़्यादातर जो लोग हैं वो पुराने ज़माने से पढ़े हुए हैं, ओल्ड जुड़े हुए हैं, तो हिंदी माध्यम से हम लोग पढ़े हुए हैं। और हमने जो समस्या फेस की थी, वो समस्या सबसे बड़ी ये थी कि जब हम BSc में आए तो अचानक से 12th स्टैंडर्ड तक हिंदी माध्यम की किताबें पढ़ने के बाद अचानक से हमको अंग्रेजी की किताबें पढ़ने को मिली। साइंस BSc में जब एडमिशन किया तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में आ गए, तो यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट सब समझ में आते थे, हमें मैथमेटिक्स आती थी, हमें भाषा नहीं समझ में आती। सर ने जो अभी एक बात कही कि जो स्पेशल चाइल्ड हैं या अलग प्रकार के बच्चे हैं वो साइन लैंग्वेज जानते हैं, हम नहीं जानते, तो दैट मीन्स हमें उनकी भाषा नहीं आती। तो मेरा हमेशा जो टीचर्स होते हैं स्कूल्स में जो प्राइमरी लेवल पे हैं, उनको हमेशा मेरा सजेशन ये होता है कि पहले आप गणित या विज्ञान या कोई भी विषय सिखाने से पहले आप उनको भाषा सिखाएं। जब वो भाषा में पारंगत हो जाएंगे तो वो गणित के, विज्ञान के किसी भी विषय के कठिन से कठिन प्रश्न को समझ करके उत्तर दे पाएंगे। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि बच्चा मेरा हो या किसी का भी हो, वो प्रश्नों के उत्तर इस वजह से नहीं दे पाता है क्योंकि वो प्रश्न की भाषा को ही नहीं समझ पाया। उसको जोड़ना आता है, उसको घटाना आता है, उसको बात करना आता है, बट वो प्रश्न को नहीं समझ पाया। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है, तो इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे कैसे, इम्प्लीमेंटेशन की भाषा क्या होगी, उस भाषा से क्या उस पॉलिसी को सब समझ पाएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। I now invite all of you for lunch. For the participants, lunch is arranged upstairs. Our volunteers will guide you. And sir, please. And after lunch we are